بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ۔ وفات سے 3 روز قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم گویا کہ میں یہیں سے اسے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दफ़ा इन अल्फाज में फरमाया, लोगों, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला ना दिया हो, सवाए अबू बकर के कि उसका बदला मैं नहीं दे सका। इसका बदला मैंने अल्लाह जल्ला शाना पर छोड़ दिया। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, सवाए अबू बकर के दरवाज़े के, जो कभी बंद ना होगा। आखिर में अपनी वफ़ात से कबल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी ताईद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातब करके इरशाद फरमाई, वो ये कि ए लोगों, क़यामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुँचा देना। फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी असना में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हो खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और इनके हाथ में मिसवाक थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे, लेकिन शिद्दत मर्ज़ की वजह से तलब न कर पाए। चनाचा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गई और उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हो से मिसवाक लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में रख दी, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इस्तेमाल ना कर पाए। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुँह से नरम की और फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि दहन मुबारक इससे तर रहे। फरमाती हैं, आखिरी चीज़ जो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पेट में गई वो मेरा लाभ था, और ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फजल ही था कि उसने विसाल से कबल मेरा और नबी करीम अलैहिस्सलाम का लाभ दहन यकजा किया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मज़ीद इरशाद फरमाती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा तशरीफ़ लाई और आते ही रो पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ ना सके, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब भी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती, हज़ूर अकरम इनके माथे पर बोसा देते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आ जाओ। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही तो हज़रत फ़ातिमा और ज़्यादा रोने लगी। इन्हें इस तरह रोता देखकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आओ। दोबारा इनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मैंने सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि वो क्या बात थी जिस पर रोईं, और फिर खुशी का इजहार किया। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो फरमाया, फ़ातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रो दी। जब उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फ़ातिमा मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुतहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की रफ़ाकत को अख्तियार करता हूँ। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर गोया हुए, या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत दरवाज़े पर खड़े शर्फ़ बारियाबी चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाज़त नहीं मांगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील उसे आने दो। मलकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है।
मुझे आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मलकुल मौत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नीचे आन रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोल कर कहा, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहों से गूंज उठी। इधर अली करमुल्लाह वज जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत तक न रही। इधर उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर तलवार बुलंद करके कहने लगे, ख़बरदार, जो किसी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफ़ात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूँगा। इस मौका पर सबसे ज़्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की थी। आप हुजरा नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सर रख कर रो दिए। कह रहे थे, हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा जिए, और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन रखे, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला शान की ज़ात हमेशा ज़िंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहाँ अकेला बैठ कर रोऊँ। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर मट्टी डालो। फिर कहने लगी, हाय मेरे प्यारे बाबा जान, अपने रब के बुलावे पर चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुँच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि हम जिब्रील को उनके आने की खबर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तहिब्बु व तारदा। मैंने आज तक इससे अच्छा पैगाम कभी अपलोड नहीं किया, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उसे पूरा सुकून व इत्मीनान के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।